बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंडरी ग्रोथ और उसके रिजल्ट में बनने वाले सेकेंडरी टिश्यूज़ और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन थिकनेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज़ from the vascular cambium and cork cambium is called the secondary growth. Now secondary growth, it occurs in dicotyledons and in the gymnosperms, and it occurs when the primary plant body of the plant from the apical meristem is completed. The tissues which are produced due to this secondary growth are known as the secondary tissues, and these secondary tissues are of two types. Number one are called vascular tissues, and these develop from the vascular cambium, and the second type of secondary tissues are cork and the phalloderm, which are developed from the cork cambium or phallogen. In monocots and in pteridophytes, secondary growth does not occur, and increase in thickness does not occur by the cambial activity because cambium is absent in these plants. How this cambium is formed? Vascular cambium is formed by the cells which are matured from the procambial cells, and then these procambial cells in those plants where secondary growth does not occur, all these procambial cells, these are converted into the xylem and phloem. But in those plants where secondary growth occurs, some of these procambial cells, they are not converted into xylem and phloem, but some of them, they remain meristematic and they are present in between the primary xylem and phloem, and these cells, they become the cambium of the secondary body, which is present in the vascular bundles or the larger segments of the primary vascular system. Therefore, due to the presence of this cambium inside the vascular bundles is known as the vascular cambium. It is also called as the fascicular cambium because fascicle means bundle. Now, when due to the activity of this vascular cambium, secondary tissues are continuously formed in the older stems and the roots, then as a result of these newly produced cells, a pressure is exerted on the epidermis, and this epidermis, it gets stretched first, and then at last it ruptures, and in place of this rupturing place, then a new protective layer is produced, which is known as periderm, and this is developed in the dicot and the gymnosperms, and this periderm is formed by the activity of a meristem which is called phallogen or cork cambium, जिसको हमने पहले भी पढ़ा। और ये cambium phallogen जो है या cork cambium जो है, it is produced in different parts of the plant body. तो अब हम जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंडरी ग्रोथ में जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज प्रोड्यूस करती है। As we have studied earlier that in majority of the monocots and pteridophytes, primary plant body जो है वो functionally और structurally complete होती है, लेकिन बहुत सारे जो डाइकोट्स और जिम्नोस्पर्म्स है उनमें प्राइमरी ग्रोथ जो है उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ होती है, and this most of the secondary growth it occurs by the lateral meristem, which is known as the vascular cambium, and this vascular cambium, it produces the secondary vascular tissues. It is present between the xylem and phloem. In stem and roots, it usually has the shape of cylinder, and but in some cases, as for example in Cucurbita genus, here the secondary tissues are produced in the separate discrete strands, so the cambium which is formed, it is also produced in the form of strips, and this in the form of strips, it also appears in the most of the petioles and leaf veins.
where it shows the secondary growth. Vascular cambium is originated from the procambium cells, as we have discussed earlier कि प्राइमरी टिश्यूज जो हैं वो प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड के सेल्स जब मेच्योर होते हैं तो वो वेस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं. एंड इन दोज प्लांट्स वेयर द सेकेंडरी ग्रोथ नहीं एब्सेंट होती है, वहाँ पर प्रोकैम्बियम के सारे सेल जो हैं वो मेच्योर होकर वेस्कुलर टिश्यूज बना देते हैं. बट इन दोज प्लांट्स वेयर सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, हेयर all the cells of the procambium are not differentiated into xylem and phloem, but some of these remain meristematic and they act as the cambium in the secondary body, and this is present in the xylem and the phloem of the primary tissues. primary xylem और primary phloem के center में जो है ये जो meristematic cells रह जाते हैं जो present होते हैं, these are known as the, this tissue is known as the vascular cambium. This vascular cambium is of two types on the basis of its position and origin. According to position and origin, it is of two types. Number one is the fascicular cambium and number two is called as the interfascicular cambium. Fascicular fascicle means bundles. The cambium which is present inside the vascular bundle is known as the fascicular cambium, and that cambium which is present in between the vascular bundles, interfascicular in between the vascular bundles, is known as the interfascicular cambium. Now we look at these diagrams where the fascicular and the interfascicular cambium is shown. These are the vascular bundles, and in these vascular bundles a white strip, this shows the cambium. This is the cambium which is present in between the phloem and the xylem. So this cambium is known as the fascicular cambium. This is present in all the vascular bundles. And interfascicular cambium is that which is present in between the two vascular bundles. vascular bundles के बीच में ये जो areas हैं जहाँ पर जो कैम्बियम पाई जाती है, दैट इज नोन एज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. Fascicular cambium and interfascicular cambium, these join with each other and then a complete ring is formed which is known as the cambium ring. According to its origin, the fascicular cambium is produced from the procambium cell, from where these primary phloem and primary xylem is produced. But this interfascicular cambium is produced from the parenchyma cells which are coming from the medullary rays. Medullary rays are the cell which are the extensions of the medulla, means के pith region के cell जो vascular bundle के बीच में ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं medullary rays कहलाते हैं. And some of the cells of these medullary rays in between these vascular bundles, they become meristematic and they form the interfascicular cambium. This interfascicular cambium and the fascicular cambium, which forms the complete cambium ring, is known as the cambium ring. And this cambium ring जो है it is connected with the other narrower cylinders of the cambium of the other branches, and the branches of the roots and stem also are connected with this cambium ring, and sometimes this cambium it also extends to the leaves. In most of the dicots and the gymnosperm, cambium cylinder is developed between the xylem and the phloem, and it produces the secondary xylem centripetally, mean towards the center, and secondary phloem centrifugally, means towards the outer side, away from the center. But in some dicots, for example in Chenopodiaceae, this secondary thickening of the axis जो है it does not occur in this way, and it occurs by different and other methods. अब हम देखते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है उसमें जो सेल्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के प्रेजेंट हैं. तो इन द वेस्कुलर कैम्बियम two types of cells are present which are known as the
fusiform initials and ray initials. Fusiform initials are the elongated cell with their tapering ends, means these are spindle shaped. उनके ends की तरफ जो है एंड उनके नैरो होते जाते हैं और बिल्कुल पॉइंटेड हो जाते हैं, तो इस टाइप के जो सेल्स हैं इनको स्पिंडल शेप्ड सेल कहा जाता है. And these fusiform initials, give rise the cells of the xylem and phloem, which are arranged with their long axis parallel to the long axis of the organ in which they are present. Means they form the vertical, longitudinal or axial system of the xylem and phloem, and as a result of the activity of these fusiform initials, जो है वो इसमें xylem और phloem के जो different components हैं उनमें tracheids, fibers, sieve cells, xylem parenchyma cells and phloem parenchyma cells are developed from the fusiform initials. While from the ray initials, the ray systems of the xylem and phloem are produced, and these cells are isodiametric, mean they are relatively short cells, they are of same diameter. And these they give rise to ray cells, means the elements of the horizontal, transverse or radial system of the xylem and phloem are produced from these ray initials. And xylem and phloem rays are formed from these cells. Both of these cells, fusiform as well as the ray initial cell, these are highly vacuolated, means that vacuoles are present in these cells abundantly, and their walls also have primary pit fields with the plasmodesmata, and through which the cytoplasm of the one cell is connected with the cytoplasm of the neighboring other cells. And during the period of dormancy especially, the radial walls of these cells, they are more thicker as compared to the tangential walls, and their primary pit fields are also deeply depressed. Here in this diagram, the fusiform initials and ray initials are shown. These are the fusiform spindle shaped cell with their tapering ends. They are longitudinal cells, elongated cells, and they form the longitudinal systems of the xylem and phloem. And these are the ray initial, which are isodiametric, and they form the ray horizontal or transverse systems of the xylem and the phloem. In the cambium cells, cells are arranged, and their arrangement is seen in these cambial cells as the cambial zone, and in this cambial zone the cambial initials are present along with their immediate derivatives. मतलब persistent जो cambial initial cells हैं और उसके साथ उनसे जो produce होने वाले derivative cells हैं वो इस cambial zone में जो है present होते हैं. And if we look these cells in the cross section, these are seen to be arranged in radial rows, and the cells on the both sides of this cambial zone, they gradually widen and then develop into the mature xylem and the phloem elements. The cambium forms xylem internally and phloem externally, means कि xylem जो है वो inner side पर produce होता है cambium से और phloem जो है वो outer side पर produce होता है. कैम्बियल सेल जो हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है, टेंजेंशियल डिवीजन होती है, और जिससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, एंड वन ऑफ दीज डॉटर सेल्स इट रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड इट इज नोन एज द परसिस्टेंट कैम्बियल सेल, while the other becomes the xylem mother cell or the phloem mother cell depending on its position. कि ये कैम्बियल इनिशियल सेल के अगर आउटर साइड पर प्रेजेंट है तो ये फ्लोएम मदर सेल होगा, एंड इफ इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड देन इट इज कॉल्ड द xylem mother cell. और इस तरह से जो है वो xylem और phloem के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो कैम्बियल सेल से जो है वो ऐड होते रहते हैं. Now according to the cambial zone, there are two concepts according the structure of the cambium which act as the initiating layer. According to one concept, this cambial zone, it consists of a single layer of initial cells with the derivatives which may divide few times and then they are converted into the permanent tissues. But it has been observed that in this cambial zone, these initials and derivatives, these cannot be distinguished, means it is not possible to identify these two types of cells. So
यूजुअली दिस होल कैम्बियल जोन जो है उसको एक सिंगल लेयर ऑफ इनिशियल्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है। जबकि दूसरे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऑथर जो हैं वो ये कहते हैं कि इसमें सिंगल कैम्बियल इनिशियल जो है उनकी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि होल होमोजेनस पार्ट ऑफ कैम्बियल जोन जो है उसके अंदर जो है वो डिवाइड होने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनिशियल मीन दे डिवाइड, एंड वो इस होल जोन जो है उसको जो है वो कंसीडर करते हैं कि इस पूरा जोन जो है उसके अंदर डिवीजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो न्यू सेल जो है वो ऐड करते हैं। नाउ इन दिस डायग्राम वी कैन सी द कैम्बियल जोन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएटिंग लेयर, जिसमें बताया गया था कि ये रेडिएटिंग रोज की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं लेयर की फॉर्म में। रेडियल रोज जो हैं वो इससे बनती हैं। दीज आर द कैम्बियल सेल्स, एंड दीज कैम्बियल सेल्स दे विल डिवाइड पेरिक्लाइनली, एंड आउट ऑफ दीज 2 सेल्स इन दिस लेयर ईच सेल जो है उसमें एक सेल जो है वो कैम्बियल परसिस्टेंट कैम्बियल इनिशियल के तौर पर एक्ट करेगा, और दूसरा डॉटर सेल जो है उससे जो है या जाइलम मदर सेल बनेगा या फ्लोएम मदर सेल बनेगा। नाउ दिस डॉटर सेल जो है वो अपर साइड पर जो है वो स्मॉल साइज में जो है ये जो है वो अपर साइड पर प्रेजेंट हैं, तो ये फ्लोएम सेल्स फ्लोएम मदर सेल के तौर पर एक्ट करेगा, और नीचे वाले जो डॉटर सेल्स हैं दे विल बिहेव एज द डॉटर कैम्बियल सेल्स। इन द नेक्स्ट डायग्राम द कैम्बियल डॉटर कैम्बियल इनिशियल सेल जो है वो परसिस्टेंट कैम्बियल सेल्स के तौर पर बिहेव करेगा, एंड द अपर सेल्स दे विल वाइड एंड दे विल फॉर्म द फ्लोएम सेल्स। देन इन द नेक्स्ट डायग्राम these cambial cells they will divide again, and then another layer of cells, a new cell daughter cell will be produced on the lower cell, and these lower cell daughter cell they will form the xylem cells. Then in the next division again this cambial cell they will divide and they will produce the xylem cells on the lower side, and this will form the xylem cell. It means ke by 3 divisions of these cambial layers, 1 layer of daughter cell is producing the phloem cells, and the 2 layers are produced on the lower side, which will form the 2 layers of the xylem cells. Then again division occurs in these cambial cells. Now this division it produces a daughter cell on the upper side. So on the upper side second layer of the phloem cells is produced. Then in the next division again this cambial cell divide and they produce the new layer of the cells, and this is again on the lower side, and in this way on the lower side 3 layers of xylem cells are produced. And again in the next division from this cambial cells another division occurs, and as a result of this division the daughter cells which are produced these are on the upper side and here again phloem cell may be produced. Then in this way the phloem cells on the outer side जो है वहाँ पर जितनी लेयर्स प्रोड्यूस होंगी, जितनी दफ़ा आउटर साइड पर प्रोड्यूस होंगे उतनी लेयर्स जो है फ्लोएम सेल की प्रोड्यूस होंगी, और जितनी दफ़ा नीचे की साइड पर डॉटर सेल जो है प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही लेयर जो है वो जाइलम सेल की जो है वो बनेगी। तो इस तरह से अल्टरनेट डिवीजन होती है कैम्बियल इनिशियल सेल्स के अंदर अपर साइड पर और लोअर साइड पर, और उससे जो है वो rows of phloem and rows of the xylem cells are produced. Here in this diagram we can see that these cambial cells they have divided 4 times they have produced the xylem initial cells, xylem mother cells, and 2 and 3 times जो है they have produced the phloem mother cell which will be converted into the phloem tissues or the phloem cells. Now in the next diagram one cambial initial has been shown in which the division of the cambial cell occurs, and then differentiation of the after this division it has been shown. This is one fusiform initial. Its position जो है वो ट्रांसफर्स की बजाय अब जो है वो वर्टिकल पोजीशन में यहाँ पर शो किया गया है. This is the cambial cell. In this cambial cell division occurs and it produces a cell, new cell, daughter cell on this side, and this will act as the xylem mother cell, and this is the persistent cambial cell. Now
in the next diagram, this cambial cell, persistent cambial cell, it divides again. Now it will produce the new cells on the other side, which will act as the phloem mother cell. तो यहाँ पर जो है ये फ्लोएम मदर सेल के तौर पर एक्ट करेगा और उससे फ्लोएम का सेल जो है वो प्रोड्यूस होगा और ये जो है वो फ्यूचर में सीव ट्यूब एलिमेंट जो है वो बनाएगा। और जहाँ पर सीव ट्यूब एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर्स जो है वो बनता है तो उसके साथ ही कंपेनियन सेल भी जो है वो प्रेजेंट होता है। Now this cambium cell, it divides again and it produces now the new daughter cell towards the xylem side. So here the second xylem mother cell is produced. Then another division will occur in this cambium cell and it will again produce the new xylem mother cell. So on this side 3 xylem cells are produced and on the opposite side, as a result of only one division, one phloem cell has been produced. Now as the division occurs in these cambial cells, the first formed cambial cells, the first formed cells from these they mature, they are differentiated according to their function. For example, इस साइड पर अब जो 3 सेल प्रोड्यूस हुए हैं तो उनमें जो सबसे पहला जाइलम सेल था इट हैज़ बीन डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन और ये जो है वो ट्रैकेड एलिमेंट जो है वो बनेगा और उसकी शेप जो है वो इस तरह से उसकी वॉल्स के अंदर जो है ये पिट्स जो है प्रेजेंट हैं और इसका जो है वो दोनों एंड्स पर शेप भी जो है वो उसकी प्रॉपर जो है वो ट्रैकेड एलिमेंट की तरह जो है वो बन जाएगी। और ये जो सेल है ये अभी उससे मैचुरेशन फेज़ में है और ये बिल्कुल ही यंग फेज़ में है जो थर्ड प्रोड्यूस हुआ था। और उसके साथ ही जो फ्लोएम मदर सेल बना था, इस फ्लोएम मदर सेल जो है इसने जो है वो सीव ट्यूब मेंबर बनाया और सीव ट्यूब मेंबर जो है उसमें ये सीव एरिया जो है उसकी वॉल में प्रेजेंट है और उसके साथ ही कंपेनियन सेल जो है वो उसकी भी एनलार्जमेंट हो गई है और वो भी इसके साथ जो है वो अटैच है। तो इस तरह से अब ये नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो इसमें मज़ीद डिफ्रेंसिएशन दिखाई गई है कि ट्रैकेडी एलिमेंट जो है वो कंप्लीट जो है वो मैच्योर हो चुका है और दूसरे सेल जो हैं वो भी मैचुरेशन फेज़ में है, डिफरेंट फेजेस में है। और जो फ्लोएम सेल था ये जो है वो सीव ट्यूब मेंबर और उसके साथ कंपेनियन सेल जो है वो कंप्लीट जो है वो एनलार्ज हो चुका है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। और इसी तरह से ये कैम्बियम सेल जो है वो अल्टरनेटली एक साइड पर जाइलम मदर सेल प्रोड्यूस करेगा और दूसरी डिवीजन में जो है वो फ्लोएम भी प्रोड्यूस कर सकता है और जाइलम भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जो है वो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस जो है इसमें दिखाया गया है जाइलम और जो है वो फ्लोएम का वेस्कुलर कैम्बियम से सेल जो है वो बनने के बाद किस तरह से डिफ्रेंसिएशन होती है। अब इसके बाद जो है वो हम कैम्बियम की टाइप्स पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैम्बियम डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्यूसीफॉर्म इनिशियल, यानी कि ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं फ्यूसीफॉर्म स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं इनकी अरेंजमेंट की बेस पर कैम्बियम जो है उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्टोराइड और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम एंड नंबर 2 नॉन स्टोराइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। In storide cambium, the fusiform initials they are arranged in horizontal rows और उनके जो एंड्स होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पर जो है प्रेजेंट होते हैं। और इस टाइप की कैम्बियम जो है ये रूबीनिया और टमेरिक्स प्लांट्स जो है उनमें पाई जाती है। जबकि नॉन स्टोराइड और नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम जो है उसमें फ्यूसिफॉर्म इनिशियल जो है दे पार्शियली ओवरलैप विद ईच अदर। इट मीन्स that they are not arranged in the horizontal rows, their ends are not present at the same levels, and these fusiform initials which are present in the non-storide cambium, these are longer than those found in the storide cambium, and this type of cambium is more common as compared to the storide cambium. This is the diagram which is showing the storide cambium or stratified cambium. These are the fusiform initials in which the ends of these are present approximately at the same level और ये horizontal rays की rows की form में जो है present होते हैं and these are the ray initial which are present in between these rows of the fusiform initials. This is the storide or stratified cambium. Now this lower diagram it is showing the non-stratified or non-storide cambium in which the fusiform initial they are not forming the rows, their ends are not present at the same level, they are present at the different levels and they are overlapping with each other. So this type of cambium which is in which the arrangement of these fusiform initials is just like this, this is known as the non-storide cambium or non-stratified cambium.
नाउ वी विल डिस्कस द ड्यूरेशन ऑफ द कैम्बियम। ये कैम्बियम जो है वो कितने टाइम तक जो है वो एक्टिव रहती है, फंक्शनल लाइफ स्पैन इसका क्या है। तो फंक्शनल लाइफ ऑफ द कैम्बियम इट वेरीज, it is different in the different species and it is also different even in the different parts of the same plant। पेरिनियल वुडी प्लांट्स जो है उनमें कैम्बियम जो है वो मेन स्टेम की जो कैम्बियम है उसमें जो है वो फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन टिल द डेथ ऑफ द प्लांट जो है वो एक्टिव रहती है। और कुछ इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो इस तरह से मेंटेन करते हैं कि उनमें कैम्बियम जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिव रहती है, जो कंटिन्यूसली जो है वो जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स प्रोड्यूस करती रहती है। जबकि लीव्स, इन्फ्लोरेसेंसेस एंड अदर डेसिडुअस प्लांट पार्ट्स द फंक्शनल लाइफ ऑफ द कैम्बियम इज शॉर्ट। Deciduous plant parts are those parts of the plants which may fall at any stage of the development, like leaves fall in the autumn season। तो ये जो है इन प्लांट्स को जिनके जो है वो कोई ना कोई पार्ट जो है वो किसी भी डेवलपमेंट स्टेज पर जो है वो गिर जाता है तो उनको डेसिडुअस जो है वो पार्ट्स कहा जाता है। तो इन पार्ट्स के अंदर और इन्फ्लोरेसेंसेस जहाँ पर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं और लीव्स के अंदर जो है वो कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, उसकी फंक्शनल लाइफ जो है वो कम होती है। और इन सब केसेस में जिनमें कम होता है इसका लाइफ स्पैन, ऑल द कैम्बियम सेल दे मेच्योर एज द वेस्कुलर टिश्यूज, मीन के सारे कैम्बियम सेल जो है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो बना देते हैं। और इस सूरत में जो है वो सेकेंडरी जाइलम इज डायरेक्टली प्रेजेंट अपॉन द सेकेंडरी फ्लोएम इन सच केसेस बिकॉज नो कैम्बियम रिमेन्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैम्बियम की सीजनल जो एक्टिविटी है वो क्या होती है और ये कब ख़त्म होती है, कब स्टार्ट होती है, किन किन प्लांट्स में किस तरह से जो है वो पाई जाती है। तो वो प्लांट्स जिनमें कैम्बियम जो है वो थ्रू आउट देयर एंटायर लाइफ जो है वो एक्टिव रहती है, इनमें कैम्बियल सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और वो जाइलम और फ्लोएम एलिमेंट्स बनाते रहते हैं। इस टाइप की जो एक्टिविटी है ये यूजुअली जो है वो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पाई जाती है, लेकिन फिर भी जो है वो सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स जो है उनके अंदर ये कंटिन्यूस जो है वो कैम्बियल एक्टिविटी जो है वो नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जो है वो इसमें इंडिया के रेन फॉरेस्ट जो है उनमें जो ट्रीज़ हैं, रिंगलेस ट्रीज़ जो है उनकी परसेंटेज जो है वो 75 जो है वो रिपोर्ट की गई है। और इसी तरह से अमेज़ोन बेसन जो है उसके फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में जो है 43% है। और इस तरह से जो मलेशिया में जो है वो तकरीबन जो है वो 15% ऑफ द स्पीशीज़ जो है वो कंटिन्यूस रेडियल ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। अमेज़ोन क्या है? अमेज़ोन बेसन इज़ द नेचुरल डिप्रेशन और द जो है वो ओवल वैली या सर्कुलर मतलब एरिया होता है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। जबकि अमेज़ोन जो है दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विच इज़ प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका। तो इस रिवर जो है उसमें जो एक बेसन, अमेज़ोन में जो बेसन एक प्रेजेंट है वहाँ पर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 43% प्लांट जो है उनमें ये उनके प्लांट्स में ये एक्टिविटी जो है वो पाई जाती है। अब इसमें जिन रीजन्स में डिफरेंट सीजनल क्लाइमेट्स होती हैं, जिस तरह से जो है वो डिफरेंट सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग सीज़न है, ऑटम सीज़न है, विंटर सीज़न है और जो है वो समर सीज़न है। तो इसमें इन रीजन्स के अंदर कैम्बियम की एक्टिविटी जो है वो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती हैं तो वो स्टॉप हो जाती है, इट सीजेज इट्स एक्टिविटी। स्पेशली जो है वो ऑटम के दौरान जो है वो स्टॉप हो जाती है और ये डोरमेंट स्टेट में आ जाती है, इनएक्टिव हो जाती है। और ये जो है उस वक्त तक इनएक्टिव स्टेज जारी रहती है कि समर सीज़न और जो है वो कमिंग जो स्प्रिंग है उसके आने तक जो है ये इनएक्टिव होती है। और जैसे स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है कैम्बियम जो है इट बिकम्स एक्टिव। और एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक्टिविटी को जो है वो कैसे जो है वो जज किया जा सकता है कि इसमें जो है वो जब कैम्बियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कैम्बियल एक्टिविटी जो है इसमें 2 स्टेजेस ऑब्जर्व की जा सकती हैं कि इसमें कैम्बियल सेल जो है उसमें पहले जो है वो रेडियली जो है वो एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सेल जो है वो फिर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, तो कैम्बियल एक्टिविटी उनमें स्टार्ट हो जाती है। जब कैम्बियल सेल जो है उनकी अलार्जमेंट होती है तो उनकी रेडियल वॉल जो है वो रेडियली क्योंकि एक्सपैंड होते हैं तो उनकी रेडियल वॉल जो है वो उस वक्त वीक हो जाती हैं
और उस स्टेज में स्टेम्स और रूट्स के जो बार्क है उसको इजीली जो है वो उतारा जा सकता है, पील किया जा सकता है। तो दिस सेपरेशन ऑफ बार्क फ्रॉम द वुड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज द स्लिपिंग ऑफ द बार्क। और ये स्लिपिंग जो है, दिस slippage may also be induced later during the cell division। और उस वक्त जब टिश्यू डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है कैम्बियल रीजन के अंदर, और जिसमें सेपरेशन जो है यूजुअली जब यंग जाइलम जो है उनके रीजन्स में जो है वो हो सकती है कि जो ऑलरेडी जो है अपनी मैक्सिमम डायमीटर को पहुंच जाते हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो है अभी प्राइमरी वॉल होती है, सेकेंडरी वॉल की थिकनिंग अभी डेवलप नहीं होती है। तो इस स्टेज में भी जो है वो जो सेपरेशन है बार्क की वो इजीली हो सकती है। नाउ दिस सीजनल एक्टिविटी जो है जब स्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो इसमें जो है ये कंसीडर किया जाता है कि बर्ड्स में जो है वो प्राइमरी ग्रोथ न्यू जो है वो स्टार्ट होती है, तो कैम्बियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और बहुत सारे जो डाइकॉट्स हैं उनमें कैम्बियल एक्टिविटी जो है वो स्टेम की वो न्यू शूट्स जो है जब बनते हैं तो उनके नीचे जो है वो मतलब स्टार्ट होती है, और उसके बाद जो है बेसिपिटल फैशन में टूवर्ड्स द बेस यानी कि एपेक्स से बेस की तरफ जो है वो जाती है, और मेन ब्रांचेस, ट्रंक और रूट्स की तरफ जो है ये फैल जाती है। और बहुत सारी रिसर्चेज जो हैं वो हो चुकी हैं और कुछ प्रोग्रेस में भी हैं जो ये डिटर्मिन करने की ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द सीजनल एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम। यानी कि सीजन में जो कैम्बियल एक्टिविटी स्टार्ट होती है, रिज्यूम होती है, तो उसमें मेनली इंटरनल फैक्टर जो है वो कौन सा इन्वॉल्व है। तो इसमें जो है इनिशियल स्टिमुलेशन, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि इट अकर्स ड्यू टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्रोथ सब्सटेंसेस इन द बेसिपिटल डायरेक्शन फ्रॉम द ग्रोइंग बर्ड्स। यानी कि ग्रोइंग बर्ड से ये ऑब्जर्व किया गया है, कंसिडर किया गया है कि ग्रोइंग बर्ड में जो है वो ग्रोथ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है और वो नीचे जो है वो ब्रांचेस और बेस की तरफ जो है वो मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से कैम्बियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें जो ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं जो स्टिमुलेट करते हैं कैम्बियल एक्टिविटी को, उसमें मेनली जो है ऑक्सिन्स और जिब्रेलिन्स हैं। इसके अलावा साइटोकाइनिन जो हैं दीज ऑल्सो स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, और ये भी जो है कैम्बियल एक्टिविटी पर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। काइनेटिन जो है इट इंक्रीजेज द सेल नंबर्स, और ये देखा गया है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें जो है वो ग्रोथ फैक्टर जिसमें फूड है, वाटर है, टेम्परेचर है, अगर ये सूटेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, सूटेबल फॉर्म में प्रेजेंट है, अवेलेबल हैं, तो जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड काइनेटिन टुगेदर, ये तीनों ग्रोथ सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट हो तो इनकी प्रेजेंस में सेल डिवीजन का जो है वो हाईएस्ट रेट जो है वो ऑब्जर्व किया गया है कि सेल जो है बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी प्लांट जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसमें कि हमने पढ़ा कि डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में होती है, जबकि मोनोकॉट और ट्रीडोफाइट जो है उसमें नहीं होती है। लेकिन जो कुछ मोनोकॉटिलिडन्स के जो प्लांट्स हैं, ग्रुप्स हैं या जेनरा है, उनके अंदर जो है वो कैम्बियम ऑब्जर्व की गई है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो ऑब्जर्व की गई है इसमें। और उन प्लांट्स के अंदर मेनली ड्रासीना है, एलो है, यूका एंड वैटिनम है। इनके अंदर स्टेम जो है वो उसकी डायमीटर इंक्रीज़ होती है, और कैसे इंक्रीज़ होती है कि उसमें जो है वो टिश्यू के अंदर न्यू बंडल्स का जब सिलेंडर बनता है तो उस वक्त जो है उसकी डायमीटर इंक्रीज़ होती है। ये आपने पढ़ा कि मोनोकॉट जो है उसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, उनके जो है वो रिंग्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर एंड आउटर जो है वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, और ये स्कैटर्ड होते हैं पूरे ग्राउंड टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर कैम्बियम लेयर जो है वो मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमा ऑफ द इनर मोस्ट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स जो है वो डेवलप होते हैं। और इसके अलावा रूट्स जो हैं उसके अंदर कैम्बियम जो है वो एंडोडर्मस से स्टार्ट होती है, एंड द इनिशियल्स ऑफ द कैम्बियम स्टैंड दे प्रेजेंट इन द टायर्स फ्रॉम एंड दे फॉर्म द स्टोराइड टाइप ऑफ कैम्बियम एज फाउंड इन द मैनी डाइकॉट्स। यानी कि जिस तरह डाइकॉट में स्टोराइड टाइप ऑफ कैम्बियम प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से जो है वो इनके अंदर भी कैम्बियम के इनिशियल जो है वो स्टोराइड टाइप ऑफ कैम्बियम जो है वो बनाते हैं। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कैम्बियम इन द वाउंड हीलिंग। कैम्बियम जो है ये वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस करने के अलावा जो है ये वाउंड हीलिंग जो है उसमें भी अपना रोल जो है वो प्ले करती है। और इसमें मतलब ये इम्पॉर्टेंट जो है फंक्शन है कैम्बियम का कि ये जो है वाउंड के ऊपर जो है वो कैलस या वाउंड टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस करती है। व्हाट इज़ वाउंड टिश्यू? ये जो है वो टिश्यू होता है कि जिसके अंदर पेरेन्काइमा टिश्यूज़ की मैसेज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, जो कि डैमेज्ड
सरफेस है स्टेम या रूट की, जहाँ तक डैमेज हुई है उसके ऊपर या उसके अंदर जो है ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ की मैसेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो ये जो है वो कैलस इसको हम कहते हैं। कैलस जो है इसके अलावा जो है वो फ्लोएम, कॉर्टेक्स और वेस्कुलर रेज जो हैं उनके पेरेन्काइमा सेल की डिवीजन से भी जो है वो बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये कैम्बियम जो है वो उससे बनता है, डेवलप होता है। देन आउटर सेल्स ऑफ दीज पेरेन्काइमेटस मैसेज जो हैं ये जो कैलस या वाउंड टिश्यू जो डेवलप होता है पेरेन्काइमा सेल्स की जो मैसेज हैं, इनकी जो आउटर लेयर्स हैं उनमें सुब्रिन सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, सुब्राइज्ड हो जाती हैं और फिर इस तरह से जो है वो पेरिडम, उसके बाद जो है या फिर जो है पेरिडम डेवलप होती है उनमें, और इस प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उसके अंदर जो है वो फिर कैम्बियम जो रिकग्नाइज्ड प्रेजेंट होती है वो जो है वो नए वेस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कैलस टिश्यू जो है ये उस वक्त भी प्रोड्यूस होता है जब जो है वो ग्रोथ सीजन के बिगनिंग में हम जो है वो प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं, मीन उनकी जो है वो कटाई करते हैं या छंगाई उनकी करते हैं, और वहाँ पर भी ज़ाहिर है जहाँ से कटिंग होती है वहाँ पर वाउंड डेवलप होता है, तो उस वाउंड के सर्कमफ्रेंस पर जो है वहाँ पर भी कैलस टिश्यू जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जो वाउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है वो कम्प्लीटली जो है कवर हो जाता है बाय द फ्यूजन लेयर्स ऑफ द कैम्बियम जो प्रोड्यूस होती हैं, और उसके अलावा जो है वो कैम्बियम से बनने वाले सेकेंडरी जाइलम जो है वो उसकी कंटिन्यूस प्रोडक्शन से जो है वो ये वाउंड जो है वो हील अप हो जाता है। मतलब वो जहाँ पर वाउंड डेवलप होता है उस निशान के इर्द गिर्द जो है वो अनडैमेज्ड एरिया जो होता है उसके अंदर कैम्बियम से सेकेंडरी सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं कंटिन्यूसली, और कैम्बियम की जो लेयर्स हैं वो भी आपस में जो है मिल जाती हैं और जिससे जो है वो कम्प्लीटली वाउंड जो है वो हील अप हो जाता है। अगर कैम्बियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है ग्रोथ सीजन में कटिंग की वजह से या किसी भी और वजह से, तो नई कैम्बियम लेयर जो है वो बन जाती है। वो कहाँ से बनती है? वो जो कैम्बियम लेयर डैमेज हुई है उसके जस्ट इमीडिएट नीचे जो प्रेजेंट होते हैं जाइलम सेल, इमेच्योर जाइलम सेल जो हैं वो कैम्बियम बना देते हैं, कैम्बियम लेयर बना देते हैं। लेकिन अगर उनको जो है वाउंड बनने के फ़ौरन बाद जो है ड्राई होने से अगर हम बचा लेते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, प्रोटेक्ट कर दिया जाए ताकि वो ड्राई ना हो, तो जो फ़ौरन कैम्बियम लेयर के नीचे जो इमेच्योर जाइलम सेल प्रेजेंट होते हैं वो डैमेज होने वाली कैम्बियम की जगह पर नई कैम्बियम लेयर जो है वो बना देते हैं। और इस सूरत में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द सेल जो है इन दिस केस जो है वो रे सेल जो है वो उनसे मतलब डेवलप होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो ये भी सजेस्ट करते हैं कि न्यू कैम्बियम की जो फॉर्मेशन है वो हार्मोनल स्टिमुलाई की वजह से होती है जो एग्जिस्टिंग कैम्बियम की तरफ से आ रहे होते हैं, कि जो जहाँ तक कैम्बियम डैमेज हो गई है तो उसके बाद जो ऑलरेडी प्रेजेंट कैम्बियम है उससे जो हार्मोनल स्टिमुलाई आते हैं उनकी वजह से जो है वो नई कैम्बियम बनती है। इसके अलावा कैम्बियम जो है इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। बडिंग क्या प्रोसेस होता है कि जिसमें एक प्लांट की बड जो है वो उतार के किसी दूसरे प्लांट में जो है वो इंसर्ट की जाती है, लगाई जाती है, तो इसको बडिंग कहते हैं। और ग्राफ्टिंग क्या होती है कि एक प्लांट जो है उसका कुछ पार्ट जो है, जिस तरह हम कलमे लगाते हैं, ज़मीन में कलमे उगाई जाती हैं, लेकिन ग्राफ्ट जो होती है कि एक प्लांट का पार्ट जो है वो उतार कर थोड़ा सा हम दूसरे प्लांट जो है उसके अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो उससे जो है वो दोनों प्लांट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कंबाइन हो जाती हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उसके अल्टरनेट के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये रेडिली जो है वो रैपिडली इसमें एक प्लांट का पार्ट निकाला और दूसरे प्लांट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर इसको कवर कर दिया जाता है। तो दोनों जो प्लांट हैं, स्टॉक जिससे वो पार्ट लिया गया है और सीजन जिसके अंदर वो इंसर्ट किया गया है, उसके अंदर जो है दोनों में जो है कैलस डेवलप होता है और जो है फिर वो जुड़ जाते हैं आपस में, और इस तरह से जो है वो कंटिन्यूस कैम्बियम लेयर जो है वो बन जाती है और उसमें जो है फिर नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बडिंग प्रोसेस में भी और ग्राफ्टिंग में भी कैम्बियम जो है वो ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है।
तो ये जो आज हमने पढ़ा है सेकेंडरी ग्रोथ और वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो ना सिर्फ वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रोड्यूस करती है बल्कि ये जो है वाउंड हीलिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बडिंग और ग्राफ्टिंग प्रोसेस में भी जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है।